Okay. Finally, is there any doubt in yesterday's topic or last two lectures of biomolecules? Day one, we had learned about the hierarchy. लिविंग और नॉन लिविंग सिस्टम का हायरार्की हम लोगों ने देखा. परफेक्ट. लिविंग का हायरार्की के बाद मैंने दो हायरार्कीज और बताई, इकोसिस्टम की हायरार्की एंड वन वाज टेक्सोनॉमी की हायरार्की. बट इन सब के बेस में था कहीं ना कहीं एक स्पीशीज और उसमें लिविंग सेल थी. उस लिविंग सेल के मेटाबॉलिज्म को परफॉर्म करने के लिए, बिकॉज मेटाबॉलिज्म वाज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ living beings, which can without any exception differentiate living with non-living, है ना? Because no the metabolism is performed by non-living and no the living being is without metabolism. Perfect. Okay. उस मेटाबॉलिज्म के लिए मैंने एक अप्रोच आपको बताया, that was a branch of science that was dealing with physiochemical approach, that was reductionist biology. In that reductionist biology, we started with biomolecules, right? In that biomolecules, quantitative, qualitative analysis. I'm revising every day just to connect the chapter. Qualitative, quantitative analysis, elemental, complex compound analysis, जिसमें मैंने एक बताया आपको एलिमेंट के लिए destructive या Asch test. Perfect. Then we started with enzymes. All those biomolecules or biocatalysts that enhance the rate of reaction by lowering down the activation energy barrier and without disturbing the chemical equilibrium. Perfect. They are specific in nature, low molecular weight compound, trace amount, बहुत थोड़ा सा लगता है. Inorganic survive on more temperature, organic on less temperature. All enzymes are protein except, शायद बताया हो या स्किप हो गया हो, all enzymes are protein except ribozyme. जितने भी enzymes होते हैं बच्चों, all those are proteins except ribozyme. That you should note anywhere in your copies, notebook or book. All enzymes are protein with an exception, that is ribozyme, which is basically a nucleic acid. Nucleic acid मतलब DNA RNA. तो ये डीएनए आरएनए यदि कैटालिटिक एक्टिविटी दिखा रहा है, लाइक आरएनए मॉलिक्यूल दिखाता है, तो ऐसा आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड व्हिच एक्ट एज कैटलिस्ट आर नोन एज एंजाइम, दैट इज राइबोजाइम. परफेक्ट. चलिए, उसके बाद मैंने आपको बताया एंजाइम्स का स्ट्रक्चर. 3 साइट्स बताई. एक्टिव साइट वेयर अपॉन सबस्ट्रेट विल बाइंड, आल्सो नोन एज कैटालिटिक साइट. Then we discuss regulatory site where inhibitor or enhancer will bind and will react as per the nature. And one is allosteric site that was generating after ES complex formation, which may or may not be originally present. और enzyme के fractions उससे bind होते हैं और फिर enzyme की activity को inhibit करते हैं. मतलब एक था catalytic site जहाँ enhance हो रही थी, एक था regulatory site जहाँ enhance और inhibit दोनों हो रही थी, और एक था एलोस्टेरिक साइट जहां मैक्सिमम इनहिबिट हो रहा था. ये हमने देखा. Then I think we studied classification. How many classes were there? 6 classes. How many classes were there? Sir, 6. 6 classes. Sequence बताइए स्मेरा. What was the sequence, स्मेरा? Yes, sir. Oxidoreductase, transferase, then hydrolases, then lysis, isomerases, and ligases. Perfect. OTHLIL. And based on this classification only, we had given a number that was enzyme commission number. Perfect. Then we learned about the nomenclature, and बड़ा issue नहीं था वो. Whatever the substrate name is there, just after the name of the substrate, we need to add a suffix ase, and that will be the enzyme of that particular substrate, like urea, urease, protein, protease. Perfect. ये हम लोगों ने देख लिया था. And we were discussing the nature of enzyme action.
वो एक ग्राफ हमने देखा था, उस ग्राफ को स्टार्ट करते हैं और फिर से एक बार उसको समझकर उसके बारे में लिखते हैं, राइट। डालिए हेडिंग नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन, और फिर हमें देखने थे फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी। आज जो हमें देखना था फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंजाइम एक्टिविटी, उसके पहले हेडिंग स्टार्ट करते हैं आज नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। I hope visibility is clear. Yes, sir. Nature of enzyme action. Perfect. मैं इन शॉर्ट थोड़ा सा बस ग्राफ बना के फटाफट हम इसको रिवाइज कर लें। एक्स एंड वाई, यहां पर लिया था हमने एनर्जी लेवल और यहां लिया था हमने प्रोग्रेस, रिएक्शन प्रोग्रेस, राइट, रिएक्शन प्रोग्रेस। परफेक्ट। और हमने एक लिया था ये रिएक्शन जहां पर रिएक्टेंट था A प्लस बी, बट जब उसमें हमने ऐड किया प्लस E तो रिएक्शन थोड़ा सा फास्ट हो गया, प्रोडक्ट बन गया। परफेक्ट। तो ये जो लोअरिंग डाउन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर था, विच इज मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी, इसको मैंने कहा था थ्रेशोल्ड, या इससे हमने कहा था एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर, एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। परफेक्ट। सो ये तो नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन था, लेकिन एग्जैक्टली आई होप विजिबिलिटी इज क्लियर। यस, perfect, right? Okay, so that was a graph that I explained you. Perfect. अब इसमें हमें थोड़ा समझना पड़ेगा बच्चों कि ये जीरो से स्टार्ट क्यों नहीं हुआ, ये मैंने आपको बता दिया था। That was a minimum potential available energy, हाँ, minimum potential available energy, available energy, छोटा लिख रहा हूं थोड़ा सा, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको बताया। परफेक्ट। लेकिन यहाँ पर दो रिएक्शन में आपको इसके थ्रू बताना चाहूंगा जिससे आपको ये समझ में आए कि कौन सी रिएक्शन एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शंस और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। मेरे साथ ही लिखते चलेंगे ताकि कुछ कंफ्यूजन होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन, जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है मैं उसे क्या कह देता हूं बच्चों, एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस। इसको मैं क्या कह देता हूं, एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस, राइट। जाहिर सी बात है एनर्जी इज रिक्वायर्ड है, इफ इसको लिख देते हैं हम पहले एनर्जी रिलीजिंग। अब ये थोड़ा सा कॉमन सेंस आपको लगाना है, और यदि समझ में आ रहा है वाकई, ओम, यदि वाकई ईशानी, चैतन्य, जयवर्धन थोड़ा भी समझ में आ रहा है मनौली, तो आप मुझे बता पाएंगे ये प्रोडक्ट का एनर्जी और ये सबस्ट्रेट। सो प्रोडक्ट और सबस्ट्रेट यदि मैं आपसे पूछूं तो P इज ग्रेटर देन S और P इज लेस देन S, एनर्जी लेवल के टर्म्स में यदि मैं आपसे बात करना चाहूं तो which equation 1 or 2, which expression will suitable for endothermic first, tell me. Sir, Tell me anyone. बोलिए, ओम बोलिए। सर मुझे डाउट है। हाँ बोलिए ना, बोलिए। सर वो आपने बताया था एंजाइम के नोमेनक्लेचर में कि एज लगाते हैं सर, लेकिन पेप्सिन में तो एज है ही नहीं। इसमें पेप्सिन में तो एज है ही नहीं। तो बहुत से बेटा जो एंजाइम की तरह भी काम करते हैं और प्रोटीन की तरह भी काम करते हैं। सारे एंजाइम्स जो है प्रोटीन होते हैं एक्सेप्ट राइबोजाइम। ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स मिलेंगे, ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स मिलेंगे जिसमें एज नहीं लगा है, बट वो मोर दे आर एक्टिंग एज प्रोटीन एंड लेस एज कैटालिटिक। जो पेप्सिन और ट्रिप्सिन होते हैं ये ऑटो कैटालाइसिस की तरह काम करते हैं, ऑटो कैटालाइसिस। तो ये ज्यादा बेटर काम करते हैं
प्रोटीन की तरह, अनलेस एंजाइम की तरह. ओम, अग्री? यस. ओके, अभी सवाल बनेगा, अभी सवाल का जवाब बनेगा. एनीवन? कोई और कहना चाह रहा था? सिद्धि कुछ कहना चाह रही थी आप? सर सेकंड. Less than S. Any explanation? Any explanation? और कोई कहना चाह रहा है, कुछ बताना चाह रहा है? Tell me, anyone? सर क्योंकि रिएक्शन के टाइम में हमको ज्यादा एनर्जी चाहिए ना, तो सबस्ट्रेट में ज्यादा एनर्जी रहेगी तभी एंडोथर्मिक रहेगा ना. एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस है ना मैडम, एनर्जी रिक्वायर्ड है ना. यहाँ सबस्ट्रेट की भी तुमने ज्यादा कर दी तो रिक्वायर्ड क्यों है? सिद्धि, सिद्धि गॉट इट? Yes, sir. शौनक कुछ कहना चाह रहे थे. शौनक अग्री? हाँ सर मैं आंसर देना चाहता हूँ. ओके फाइन. आई होप कि ये बात, छोटा सा कंसेप्ट था कि एक इसलिए मैंने लिख दिया, आपको एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक नहीं समझ में आएगा, सो व्हाट आई रोट हियर, रिक्वायरिंग प्रोसेस. जाहिर सी बात है, रिक्वायर्ड मतलब उसका एनर्जी लेवल कम है ना, सो इट डज रिक्वायर. सिद्धि अग्री? Yes, sir. प्लीज नोट इट, इसको नोट कीजिए. छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, इसको कोई बहुत बड़ा भारी क्वेश्चन नहीं बनेगा इसमें. एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, enzyme substrate complex and product plus enzyme. परफेक्ट. और ES कॉम्प्लेक्स को जो मैंने लिख दिया उसको क्या लिख दिया? ट्रांजिशन स्टेट. प्लीज नोट. और कोई डाउट हो तो मुझे बोलिए. सर. ओके, टेल मी. सर वो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक समझ में नहीं आया, एक बार रिपीट करिए ना. कौन बोला? सर ओम. ओम, क्या इशू हुआ? मैंने यहां लिखा है बच्चों को क्या? एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस. ओम, मैं ऑडिबल? यस सर. अब एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस बोला मतलब सबस्ट्रेट जो है, सबस्ट्रेट को एनर्जी लगेगी तब प्रोडक्ट बनेगा. अग्री? यस सर. गॉट माय पॉइंट? यस सर. ये मैंने क्यों लिखा है बच्चों? क्योंकि यहां लिखाने के बाद यदि कहीं बुक में पढ़ने में आया, सो बीइंग अ रेजोनेट, जरूरत नहीं पढ़ने वाली कहीं इसकी, बट कंसेप्ट है ना, तो अपने को ध्यान रहे कि यार एंडोथर्मिक है और ये एक्सोथर्मिक है, मतलब रिलीजिंग है. और जब रिलीजिंग है तो मतलब किसका एनर्जी लेवल ज्यादा है? वो सबस्ट्रेट का ज्यादा था, प्रोडक्ट बना, बाकी का रिलीज हो गया. अग्री? यस. एनी डाउट टू एनीवन? ओके, ये मैंने रिएक्शन भी क्यों लिखा दी? मैकेनिज्म में जब तक ट्रांजिशन स्टेट नहीं आएगा, until unless complex is there, product cannot be formed. Until unless transition is there, product cannot be formed. मतलब एक वो ओलंपिक में दौड़ हमने देखी है ना कि एक मिनिमम बैरिकेड्स को पार कर लिया आपने तो आप जीतते हैं. बट यदि जीतना है तो आपको वो मिनिमम बैरियर्स तो क्रॉस करने पड़ेंगे ना. लेकिन मिनिमम बैरियर क्रॉस करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि प्रोडक्ट बनेगा, बिकॉज बैरियर क्रॉस करने के बाद हो सकता है कि प्रोडक्ट कुछ और भी बन रहा हो. दैट मींस एक मिनिमम एनर्जी लेवल का होना जरूरी. तो यहाँ ट्रांजिशन स्टेट का मेरा मतलब क्या है? मिनिमम एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर. परफेक्ट.
चलिए, अब यहाँ पर मैकेनिज्म यदि यहाँ पर दिख रहा है तो मैं इस मैकेनिज्म के लिए लिख सकता हूं यहाँ पर लॉक एंड की। दो वो जानना और बताना शायद जरूरी ना हो लॉक एंड की हाइपोथेसिस, लेकिन ये दिया था बच्चों किसने, एमिल फिशर। क्योंकि बायो में क्या है, ये भी नाम कई बार आ जाते हैं। तो एमिल फिशर साहब ने बताया था कि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, लाइक दिस, है ना, और वो एक दूसरे में फिट होते हैं। लेकिन कोशलैंड साहब थे, इन्होंने एक नया थ्योरी दे दिया था, इंड्यूस्ड फिट मॉडल। ये सिर्फ अपनी जानकारी के लिए अपन रख रहे हैं, इंड्यूस्ड फिट मॉडल, जो किसने दिया था, कोशलैंड साहब ने। कोशलैंड साहब कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि दे आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, हाँ, बट ऐसा हो सकता है कि दे कम क्लोज टू ईच अदर एंड देन दे एडजस्ट देयर साइज एंड बाय एडजस्टिंग दे फिट इनटू ईच अदर। दिस इज इंड्यूस्ड फिट मॉडल। First they will come proximal, then they induce each other's structure and then they fit. This is induced fit model. दोनों ही theories अपनी जगह पर सही है, but as far as specificity is concerned, enzymes are highly specific towards their substrate. बराबर, कोई भी एंजाइम किसी भी सबस्ट्रेट से काम नहीं करता। परफेक्ट, नोट कीजिए, राइट? ओके, एक और चीज एंजाइमेटिक एक्शन में मैं आपको बताना चाहूंगा, टर्नओवर नंबर। ये सब टर्मिनोलॉजी किस में आती है, मैकेनिज्म में। टर्नओवर नंबर, जैसे आप पेजेस को टर्नओवर करते हैं बच्चों, यदि मैं पेजेस लूं, आपका अटेंडेंस शीट यहां पर रखा है, ये पेजेस ऐसे रखे थे, यहां पे लिखा होता पीटीओ, प्लीज टर्नओवर, यानी एंजाइम के मॉलिक्यूल्स यूनिट टाइम में कितने सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल को टर्न कर देते हैं प्रोडक्ट में। दिस इज व्हाट टर्नओवर नंबर, दिस इज व्हाट टर्नओवर नंबर, कि यूनिट टाइम, इन अ यूनिट टाइम the whatever the amount of enzyme, how much amount of enzyme molecule convert the substrate into product, that will be enzyme's turnover number. So can you tell me, the better the turnover number, the fastest the enzyme will be? Agree? Yes, sir. Perfect. So turnover number का definition लिखते हैं बच्चों। turnover number, the number of substrate molecules, लिखते हैं मेरे साथ, the number of substrate molecule, the number of substrate molecule changed per minute, changed per minute by a molecule of enzyme, by a molecule of enzyme in a unit time. अब वो यूनिट टाइम जो भी हम ले लें, परफेक्ट। सर हमने पर मिनट लिया ना यूनिट टाइम। अच्छा, ले लिया हमने, ठीक। नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल चेंज पर मिनट, अग्री, वेरी गुड। कौन बोला? कौन बोला? सर मानस। गुड मानस भाई, वेरी गुड, अटेंटिविटी, वेरी गुड, फाइन। सो ये कुछ ऐसे एंजाइम मैकेनिज्म में बच्चों अपना टर्मिनोलॉजी थी जो मुझे आपको बताना जरूरी थी। सर, हाँ बोलिए, कौन? सर आपने वो ब्रैकेट में क्या लिखा है? ये लिखा है कि कैटालिट, टर्नओवर नंबर को लिखते समय जो रिप्रेजेंटेशन किया जाता है ये एक कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट के मैंने लिख दिया, और ये कैटालिटिक एफिशिएंसी। कैटालिटिक एफिशिएंसी बेटर किसकी होगी? बेटर द टर्नओवर नंबर, बेटर द कैटालिटिक एफिशिएंसी। ओम, अग्री? यस सर। चाहे तो लिख लें, यही लिख लेते हैं अपन, एंजाइम efficiency is directly proportionate to k cat। तो अपनी कहानी सॉल्व हो गई, मतलब समस्या ही खत्म हो जाएगी अपनी, समझने वाली बात। और इसका एक एग्जांपल मैंने कल ही आपसे शेयर कर दिया था,
Any idea? Any idea? Carbonic anhydrase. Carbonic anhydrase present in which organism? Human. When erythrocyte. RBC. RBC. What it does? Fatafat instant answer. What it does? Hydrogen to hydrogen. H2CO3. H2O plus CO2 gives H2CO3. Perfect. दो आगे भी तोड़ता है और इसकी कितनी एफिशिएंसी बताई थी मैंने आपको? Get fast. 6 lakh Slack per second. है ना? Okay. No problem. चलिए. I hope कि इसमें एक सेंटेंस में आपको और लिखा दूं कि ये जो सबस्ट्रेट्स के प्रोडक्ट बनने के बाद जो एंजाइम्स बच्चों बाहर निकलते हैं, those enzymes, the enzymes or fractions of enzymes or fractions जो भी निकले E1, E2, E3 total must be E because chemical equilibria should not be disturbed. So whatever the fractions E1, E2, E3 that should be equal to E, law of mass action के accordingly है ना. So enzymes or fractions release after forming a product. After forming a product are free to bind again with substrates ना, इसलिए वो रिएक्शन कंटिन्यू रहती है और रुकती तब है जब फीडबैक कहीं पर होगा, है ना. चलिए सर तो अगर ऐसी बात है तो फिर वापस तो एंजाइम्स बनाने की जरूरत ही नहीं होगी. हाँ, तो एंजाइमेटिक रिएक्शन मैडम ऐसे ही तो होता है. एंजाइमेटिक बहुत छोटा अमाउंट लगता है इनका और ये रिएक्शन को कंटिन्यू रखते हैं, लेकिन सेम टाइम्स मेरा व्हाट आई टोल्ड यू अबाउट फीडबैक इनहिबिशन. यस्टरडे वी डिस्कस्ड फीडबैक. इज इट? यस सर. Suppose what I'm doing, I'm continuously teaching biology, start teaching biology, continue to teach biology. Now your response. Now what the fractions will be there? The notes लिखते जा रहे हैं. Notebook will complete. This completed notebook itself induce me enough. No need to react further. Agree? Okay sir, thank you. Okay. So that was overall enzymatic action जिसमें दो चीजें मुझे आपको बतानी थी, लॉक एंड की, इंड्यूस्ड फिट मॉडल, टर्नओवर नंबर एंड ये एंजाइम फिर से बाइंड हो जाते हैं ना. Now the most important one is factors affecting enzyme activity. But before that, few terms representing a complete enzyme. So that मैं फिर बोर्ड को मिटाकर हम लोग फैक्टर्स नए सिरे से देखें. Right? So let us start with the complete enzyme is my dear what? Holoenzyme. Which is consist of apoenzyme plus coenzyme. या NCERT के अकॉर्डिंगली हम लोग चले तो प्रोस्थेटिक ग्रुप. प्रोस्थेटिक ग्रुप छोटा सा कंसेप्ट है, कंसेप्ट नहीं भी बहुत बड़ा. होलो मीन्स होता है कंप्लीट एंजाइम. होलो मीन्स कंप्लीट एंजाइम बच्चों. एपो मतलब होता है प्रोटीन पार्ट. प्रोस्थेटिक ग्रुप मतलब होता है नॉन प्रोटीन पार्ट. That I already told you, all the enzymes are protein. That means protein part is must, but along with this, a non-protein part is there. If you will ask me about complete enzyme, it will be active. But if you ask me individually,
it will be inactive, plus it will be inactive. Perfect. If you ask me, two inactive will make active, yes, it make functional. This non-protein part may comprise of two parts. Either it will be a cofactor or it will be a coenzyme. In fact, as per the class 11, one more is metallozyme. Cofactor, coenzyme, and metallozyme. What cofactors are? If this non-protein part binds covalently, binds firmly, binds strongly with protein part and can't be readily dissociated, then it is cofactor. Means if apo plus pro, the prosthetic, binds, या ऐसा मैं लिख दूं इतना बड़ा लिखने के बजाय, if non-protein part binds strongly, covalently, then it is cofactor. तो यहां लिखने की मुझे जरूरत नहीं, यहां लिखने की जरूरत नहीं है ना. यहां कोवेलेंट बॉन्ड है, वहां कोई दूसरा भी बॉन्ड हो सकता है. Not strongly bind. Therefore के 3 डॉट लगाए मैंने. Therefore बड़ा करूं थोड़ा सा. Therefore can be radially dissociate. Can be radially dissociate. और मेटलोजाइम, ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं यार, जिसमें जिंक लगा है, जिसमें कॉपर लगा है, जिसमें मैंगनीज लगा हुआ है, ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं. तो वो जब बाइंड हो रहे हैं तो उसको मैंने कह दिया मेटलोजाइम्स. बट यहां एक बड़ा अच्छा नीट का सवाल निकल कर आ गया अभी मेरे दिमाग में. एंड द क्वेश्चन इज ब्लू कलर से दिख रहा है क्या? यस, दिख रहा है. मोस्ट ऑफ द विटामिन्स आर, लॉजिक है छोटा सा, मोस्ट ऑफ द विटामिन्स आर, बोलेंगे कोई? कोएंजाइम्स. क्यों बच्चों? क्यों? लिखते भी चलिए साथ में, सुनते भी चलिए. क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं आपसे? मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं, दिख रहा है पूरा? यस. मैं क्यों ऐसा कह रहा हूं? ये रेडियली डिसोसिएट हो रहा है. हम क्यों कहते हैं फूड? एक बहुत मजेदार और अच्छा किस्सा मैं आपको बताऊं, पहले नोट कीजिए. बनोली, अंडरस्टूड? यस सर. मुग्धा, नमीशा, प्रणव, चैतन्य, अर्णव, आंचल, यस सर. Yes, sir. Yes, sir. महापात्रा. ओके, मैं ये कहना चाह रहा था आपको, क्या बता रहा था? यस, मैं आपसे ये कहूं कि विटामिन इज फूड और फूड सप्लीमेंट. एनीवन? फूड सप्लीमेंट. विटामिन इज फूड और फूड सप्लीमेंट. फूड सप्लीमेंट. फूड सप्लीमेंट. बच्चों, आपके और मेरे एनर्जी सोर्स केवल, शौनक, इट्स नॉट फूड. शौनक, इट्स नॉट फूड, इट्स फूड सप्लीमेंट. यदि फूड होता तो क्या ही बात थी, कहां रोज का रोटी सब्जी बनाने के चक्कर में पड़ते हैं, बढ़िया विटामिन का डब्बा लाते और खा लेते, है ना. बट इट इज फूड सप्लीमेंट, नॉट द फूड. फूड वी हैव ओनली 3. यदि कोई रेजोनाइट है और मुझसे पढ़ा है तो वो बताएगा अपनी बॉडी का फ्यूल, यानी अपनी बॉडी का फूड जो एनर्जी देता है, उसका नाम क्या है? कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट. ओके, मैं बताता हूं. मुझे ये बताइए स्मेरा, मम्मी के किचन का फ्यूल क्या है? स्मेरा, व्हाट इज द फ्यूल ऑफ
mama's kitchen? LPG. LPG. So your fuel is what? LPC. है ना मजेदार? Your fuel is what? LPC. आप मुझे बता दीजिए जितने भी विद्वान यहाँ बैठे हैं कि इन तीनों के अलावा यदि कोई फूड और फ्यूल वो बॉडी में इस्तेमाल कर रहे हैं तो other than LPC, no other substance can be used as fuel. So LPC is our body fuel, LPG is mama's kitchen fuel. है ना? याद रखना भी आसान है. लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट. रेस्ट एवरीथिंग बच्चों, एवरीथिंग इज सप्लीमेंट. ये डाइजेशन में बहुत अच्छा सवाल मैं पूछूंगा आपसे, आज ही बोल देता हूं. इसके अलावा कुछ खा नहीं सकते एज एन एनर्जी सोर्स. स्पेशली ये बॉडी में स्टोर नहीं हो सकते. इसके अलावा कुछ खा नहीं सकते और ये बॉडी में स्टोर हो नहीं सकते. मम्मा के पास तो स्टोर भी हो जाता है गैस सिलेंडर. तो अब मैंने आपको सोचता हुआ छोड़ दिया, दिमाग लगाइएगा. इन तीनों के अलावा कुछ खा नहीं सकते और ये बॉडी में स्टोर हो नहीं सकते. इनसे एनर्जी रिलीज कराने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है. तो ये क्या करते हैं एज अ सप्लीमेंट, वहां से तुरंत वो रिलीज होते हैं, एज ए कैटालिस्ट काम करते हैं और रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं. इसलिए फूड में विटामिन का होना जरूरी है. विटामिन एनर्जी प्रोवाइडर नहीं है, बट विटामिन इज नीडेड to release the energy from these three substances. So they are the coenzymes. They readily dissociate, act as catalyst, proceed the reaction. That's it. Perfect. And release the energy. Got my point? Got my point? Yes, sir. Yes, sir. Perfect. Om, everything is clear? Yes. Okay. अब यदि मैं आपसे ये पूछूं, यार ये जो एंजाइमेटिक रिएक्शन मैंने आपको बताई, इसमें सिर्फ एक छोटा सा सवाल मुझे बता दिए सो दैट आई शुड बी कॉन्फिडेंट कि आपको समझ में आ गया. Why these active sites generates or why these active sites form? Why these active sites form? To bind with substrate. फिर से To bind with substrate. ओह, अरे तो उसे थोड़ी पता था कि मुझे बाइंड होना है सबस्ट्रेट से. बच्चों मैंने आपसे कहा ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन. प्रोटीन बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है ना. प्रोटीन मैक्रोमोलिक्यूल में कंसीडर हो रहा है. इतना बड़ा मॉलिक्यूल है कि अमीनो एसिड बाइंड होते जाएंगे एंड अ लॉन्ग चेन विल बी देयर ऑफ अ प्रोटीन पॉलीमर. वो इतना ज्यादा फोल्ड हो जाएगा. इतना बड़ा प्रोटीन, हाउ यू कैन अकोमोडेट इन अ वेरी स्मॉल cell? How you can accommodate a big size protein in a small cell? So it should be folded. आप मुझसे कहें कि सर इतने बोर्ड में जो विजिबिलिटी हो रही है इसमें एक स्ट्रेट लाइन बिठाना है, ये मैंने बिठा लिया. आपने कहा सर इसका डबल लाइन मुझे बिठाना है. डबल लाइन, तो अब डबल लाइन बिठाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? ये लीजिए, मैंने उससे डबल लेंथ का लाइन यहां पर बिठा दिया. बट व्हाट आई डिड, I fold it. So this is the peculiar character of biomolecules, that to accommodate in a very minimum size in a cell, usually all molecules fold themselves. ऐसा ही तो डीएनए ने किया है. डीएनए का थ्रेड यदि आप खोलो दोस्तों तो सेल का अर्थ टू मून 6 राउंड्स. आपकी सेल के डीएनए को मैं निकालूं तो अर्थ टू मून 6 राउंड्स कैन बी देयर. कैन यू इमेजिन? शॉकिंग, एकदम सरप्राइजिंग, बट दिस इज द फैक्ट. और ये जो 6 राउंड्स लगने हैं वो इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है कि अच्छा खासा हेलिक्स बन गया है. और वो ऐसा ही हेलिक्स है जिसे सीधे खोलने से नहीं खुलने वाला. इसको खोलने के लिए एंजाइम लगता है, हेलिकेज. हेलिकल पर काम करने वाला एंजाइम हेलिकेज, जो हेलिकल को खोलेगा, तब तो डीएनए रेप्लिकेट होगा. दैट विल डील इन हायर क्लासेस. सो मैं आपसे कह रहा था कि जब ये फोल्ड्स बनती हैं, देख रहे हैं आप, तो ड्यू टू दिस फोल्ड्स बाय डिफॉल्ट सम एक्टिव साइट्स ऑलरेडी प्रिपेयर्ड. गॉट माय पॉइंट कौशिकी? Yes, sir. डॉक्टर बाविस्कर, डॉक्टर मानस, डॉक्टर बंदार,
Yes, sir. Pranav, got it? Excuse me, Yes, sir. sir. Can you please repeat? Nothing. When the structure tries to, when a biomolecule tries to accommodate itself in a very small place, in a very small area, so they have to coil themselves. So during coiling or during reducing their size, when they coil, there are some structures that generated and that act as active sites, whereupon substrate can bind. Got it? Yes, sir. Okay, perfect. चलिए, प्लीज नोट दिस. मुझे नहीं लगता कि इसका मुझे आपको इमेज भेजने का जरूरत है, बट स्टिल कोई डाउट हो तो मुझे बताइए. मैंने कल का भी इमेज शेयर किया कि नहीं, आई एम नॉट श्योर. मैंने इमेज शेयर किया बच्चों को. No, sir. मुझे इसमें कैमरा भी नए फोन में दिख नहीं रहा है बच्चों. हाँ बोलिए बोलिए. डाउट चालू सर ये नॉन प्रोटीन पार्ट Any more? No, sir. I'm taking an image. Okay, fine. Now I can erase this. चलिए फटाफट, बहुत जरूरी है अपने लिए मैकेनिज्म समझ लेना. हेडिंग डालेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी. फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी. बहुत मजेदार और लॉजिकल. पूरे इसमें बस लॉजिकल यदि कुछ था तो दैट इज दैट पार्ट ऑफ. This is fine. Factors affecting enzyme activity. Factors affecting enzyme activity. Fine. Get fast. सारे factors मैं एक साथ आपको लिखा दूं पहले. Number 1, we will discuss about pH. Number 2, we'll discuss about temperature. Number 3, we'll discuss about concentration of an enzyme. Number 4, we'll discuss about the concentration of substrate. Still space is there. Number 5, we will discuss about, दिख रहा है? Yes, दिख रहा है. Inhibitors. Perfect. This 5 at least we'll discuss. Rest कोई बहुत जरूरत नहीं. Proximity, orientation at this level we do not require. At least 5 factors we should discuss. So first, pH. One by one we will discuss. First factor is pH. मुझे आपको क्या बताना है कि what are these factors? How these factors can affect the enzyme activity? Enzymatic reaction को increase, decrease, increase in fact, है ना? और यदि pH बिगड़ जाए तो वो decrease भी है. Enzyme always increase, but factors तो उसे decrease कर सकते हैं ना? That factors we know to learn. Okay, pH. Simple by explaining a graph.
एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मेरे साथ ही बनाते चलेंगे। डोम शेप कर्व, डोम शेप कर्व बना दिया। डोम शेप कर्व क्या कहता है? मैंने एक्स एक्सिस पर ले लिया pH, y एक्सिस पर ले लिया वेलोसिटी। हाउ वी विल रीड इट? How we will read it? Usually it's a dome shaped curve studied in such a way that when we increase the pH, ध्यान से देखिएगा, मैं डॉट डॉट ब्लू से करके आपको दिखा रहा हूं। When I move on x-axis, ग्राफ पढ़ते आता होगा, विनर बैच से ये एक्सपेक्टेड है कि ग्राफ रीडिंग they can do this. When I increase pH like this, as I'm going to increase the pH, gradually what I expect, the velocity increases. I'm increasing the pH, velocity increases. I'm increasing the pH, velocity increases. But this is not the way for enzyme. बहुत लाइट आपको दिख रहा है क्योंकि वो करेक्ट भी नहीं है। आपको मैं ताकि दिखाऊं उसे क्यों करेक्ट नहीं है बच्चों। pH के केस में enzymes are, as they are specific towards their substrate, they are highly specific towards their pH. Means they worked only on an optimum pH. They worked only on an optimum pH. Enzymes work only on an optimum pH. Suppose, for example, I am talking about salivary amylase. जो सबको पता है और सब जानते हैं, salivary amylase. If it is acting on 6.8, it will be function only on 6.8. तो आपको क्या लग रहा है salivary amylase का function? Anyone knows what salivary amylase do? Anyone? Starch Act on the starch. कार्बोहाइड्रेट स्टार्च को किसमें बदलता है? माल्टोज। और चपाती जो आप खाते हैं, चपाती बार बार चुई करें आप तो थोड़ी देर बाद वो मीठी लगने लगेगी। उसमें कुछ मत डालिए, सिर्फ चपाती चबाते रहिए। सो जब वो चपाती या रोटी आप चबा रहे हो तो थोड़ी देर में मीठी लगने लगेगी। द रीजन इज माल्टोज कन्वर्ट हो गया। बट कैन यू इमेजिन, तो घर पर भी कर सकते हैं। 2 बूंद लेमन जूस, नींबू का रस डाल लीजिए मुंह में while you are chewing that चपाती, और फिर देखिए आपने बक्कल कैविटी का pH ड्रॉप कर दिया तो वो जो salivary amylase काम करने वाला था वो इनएक्टिव मोड में चला गया क्योंकि वो तो स्पेसिफिक था 6.8 पर। ऐसा भी नहीं कि मैंने आपसे कहा कि वो 5 से चलना शुरू हुआ, धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ और 6.8 पर मैक्सिमम हो गया। नहीं दोस्तों, वो 6.8 पर फंक्शनल है तो 6.8 पर ही फंक्शनल। हाँ, 6.9 पर थोड़ा कर सकता है, 6.7 पर थोड़ा कर सकता है, बट इफ यू एक्सपेक्ट कि वो 5 पर काम करे या 7 पर काम करे या 8 पर काम करे तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। सो दे वर्कड ऑन देयर ऑप्टिमम पीएच। परफेक्ट। लिखते भी चलेंगे क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी चीजें, बहुत भारी भारी चीजें नहीं बता रहा। Salivary amylase 6.8. This is the factor pH. Any doubt? So that मैं आगे बढ़ूं? Any doubt? So the graph is incorrect for enzymes. आनंद फिर से बोलिए। Sir, is the graph incorrect for enzymes? No, it's not incorrect. सर मैं वही बता रहा था, सच डोम शेप्ड कर्व, बेल शेप्ड कर्व की रीडिंग ही ऐसी होती है। इफ यू इंक्रीज, यदि इधर बढ़ते जाते हैं तो भी एक्टिविटी कम हो रही है देखिए, और यदि आप डिक्रीज करते हैं पीएच तो भी एक्टिविटी कम हो रही है देखिए। Yes. कौन पूछा था सवाल? Sir, Ishani. तो देखिए यहाँ पर अब ये जो है इसको मैंने यदि लिख दिया V max तो कोई दिक्कत? इसको लिख दिया मैंने वेलोसिटी मैक्सिमम। अग्री? Yes, sir. Yes, sir. तो V max है ना। अब आप pH बढ़ाते जाइए तो वेलोसिटी कम हो रही है, pH कम करते जाइए तो भी वेलोसिटी कम हो रही है। अग्री ईशानी? Yes, sir. परफेक्ट। ओम, हाँ बोलिए बोलिए।
सर जैसे सलाइवरी अमाइलेज अभी एग्जैक्ट 6.8 पे एक्टिव होता है, तो ग्राफ थोड़ा ज्यादा शार्प नहीं होगा? ये ग्राफ को शार्प करना है ना अपने को। हाँ, यानी एकदम एक टाइम पे 6.8 पे पूरा यस काम कर यस रहा यस, लगे। भाई मैं कह रहा हूं ना आपको, ये ग्राफ बेटा ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, लाइक दिस। आगे चल के ये ऐसा भी हो सकता है, यही कह रहे हो ना? हाँ सर। यस ये हो सकता है, बट ये बहुत स्पेसिफिक, मैंने कहा ना सलाइवरी अमाइलेज इतना वो नहीं है। 6.8 6.9 7 पर थोड़ा भी पीएच कम ज्यादा हो गया तो वो माल्टोज तो कन्वर्ट कर रहा है। कुछ ऐसे एंजाइम्स आएंगे गैस्ट्रिक एंजाइम्स जो भैया 2.2 तो 2.2 पर ही काम करेंगे। अगर नहीं यस सर। ओके परफेक्ट। चलिए दूसरा फैक्टर समझते हैं बच्चों। दूसरा फैक्टर इज व्हाट? टेम्परेचर। सेम ग्राफ आई कैन ड्रॉ लाइक दिस। एक्स एक्सिस अब मैं ले लेता हूं टेम्परेचर, वाई एक्सिस पर क्या ले लेता हूं? वेलोसिटी। यही तो देख रहे हैं हम लोग। फिर मैं डोम शेप बना देता हूं, थोड़ा सा ब्रॉड बनाता हूं, फिर इसको मैं वी मैक्स कर देता हूं, फिर इसको मैं ऑप्टिमम कर देता हूं। यानी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, since enzymes are biomolecules with the consideration of our body temperature 37 डिग्री, ये एंजाइम 37 डिग्री पर ही काम कर। और मैंने आपसे कहा था ऑर्गेनिक कैटालिस्ट हायर की लोअर टेम्परेचर? फास्ट लोअर। तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर ही नहीं जाएंगे। 38 39 के बाद तो दे स्टार्ट डीनेचुरेशन। और इसलिए तो जब फेवरिश कंडीशन होती है बॉडी का सिस्टम स्टार्ट माल फंक्शनिंग, because with increasing temperature enzymes keep on degrading. If enzymes are not functional, how the metabolism will perform? है ना? So every metabolic reaction go to slower and slower. Perfect. So with the consideration of our body temperature, that is 37 degrees centigrade, enzymes are functional on 37 degree. So less than 37, that I agree. ऐसा नहीं कि विंटर ठंड पड़ने लगी, नासिक में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, 2 डिग्री 3 डिग्री तक पारा चला गया, and अब enzymes ने काम करना बंद कर दिया. No way. So in that case, the sentence that I was not using in this case, I can use here. With the increasing temperature, enzymatic activity increases, velocity increases, but up to certain limit. But up to certain limit. After that, if you increase more temperature, velocity will be decreases because enzymes start denaturing. Because enzyme starts denaturing. तो यहां पर मैं लिख देता हूं enzyme work on optimum temperature but increases, sorry velocity लिखना चाहिए मुझे पहले, but velocity increases with the increasing temperature up to a limit. अब वो लिमिट हमें पता है, फॉर ह्यूमन बॉडी इट इज 37 डिग्री ना, बट कैन यू इमेजिन यार, ऐसे भी बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, यदि आप सोच पा रहे हो, कैन यू इमेजिन कश्मीर का डल लेक पूरा फ्रीज हो जाता है ऊपर, उसके ऊपर आप खेल सकते हैं, यू कैन प्ले ओवर दैट लेक, अंदर फिशेस जिंदा है, अंदर फिशेस जिंदा है, उसका कारण एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर, जिसकी मैक्सिमम डेंसिटी कितने पर? वाटर पढ़ा है सबने? 4 डिग्री। तो ऊपर तो आइस है लेकिन नीचे फिशेस जिंदा हैं, तो कुछ ऐसे भी एंजाइम्स हैं जो लो टेम्परेचर पर काम करते हैं, बट दे आर ऑप्टिमम टेम्परेचर. विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर वेलोसिटी डेफिनेटली इंक्रीजेस. सो रिलेटेड टू दिस, अ साइंटिस्ट वॉन हॉफ गिव्स अ रूल, उसे कहते हैं वॉन हॉफ्स रूल. इन्होंने क्या कहा? every 10 degree rise doubles the rate of reaction. Every 10 degree rise doubles the rate of reaction.
ये वॉन्टॉप का एक रूल था, लेकिन क्या है, बहुत ज्यादा नहीं कर पाएंगे ना, इसको भी मैं लिख दूं आगे, कंडीशन प्रोवाइडेड अप टू अ लिमिट। नहीं तो आप कहेंगे कि सर तो जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे और बढ़ना चाहिए, बट अप टू अ लिमिट, उससे ज्यादा तो लिख दूं मैं अप टू अ लिमिट, एंड आफ्टर दैट एंजाइम denatures. Perfect? Perfect? Yes, sir. विजिबिलिटी, हाँ यस, कट तो नहीं रहा है ना बच्चों, लिखा हुआ कुछ नहीं कट रहा है ना? नहीं सर। चलिए, ये बहुत बड़े। अब जो फैक्टर्स हैं यार वो मजेदार है दोनों। थर्ड फैक्टर इज, इसलिए मैंने फ्रंट का स्पेस रखा उनके लिए, एंजाइम। बीइंग अ रेजोनाइट, बीइंग अ बायोलॉजिस्ट, जितने भी डॉक्टर्स यहाँ बैठे हैं, मैं ये नहीं जानता कि कितने IITians हैं, बट वॉट एवर द डॉक्टर पॉपुलेशन इज देयर ना, एंजाइम ब्रैकेट में मैंने लिखा है दिस इज एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन। एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन मतलब दे आर फंक्शनल, इस ब्रैकेट का मतलब होता है एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम। मैं कह देता हूं इसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम, but this is active concentration of enzyme which has actually function and participate in reaction. Okay, but इसके लिए बड़े मजेदार चीज समझते हैं, बड़ा ग्राफ लेते हैं, सेम x एक्सिस एंड y एक्सिस। x एक्सिस पर क्या ले लें हम, एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन, इस पर क्या ले लें, वेलोसिटी, and I can prepare the graph like this, and this is Vmax. This is Vmax. Anyone can predict? Anyone can read the graph? Tell me. How we can read? How we can interpret the graph? Anyone? आफ्टर अ सर्टेन लिमिट वो कांस्टेंट रहता है। स्टार्ट से बताइए। मतलब एक लिमिट तक पहुंचने से पहले वो इंक्रीजिंग रहता है एंड उसके बाद वो कांस्टेंट रहता है। Sir, can I try? Yes, शौनक मनोली बोलिए, शौनक बोलिए। सर पहले एंजाइम एक्टिव एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है टू सर्टेन लिमिट, और उसके बाद जो रिएक्शन रहती है, रेट ऑफ रिएक्शन, वो भी स्टेबल होती है और एंजाइम्स बढ़ते जाते हैं एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सिद्धि और ओम भी कहना चाह रहे हैं, बट मैं ही कह देता हूं ताकि आपको, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया सबको। विद द इंक्रीजिंग एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन वेलोसिटी इंक्रीजेस, in whatever the proportion enzyme concentration increases, velocity increases. Enzyme increases, velocity increases. But after a limit, if you increase more enzyme, there will be no reaction at all. No decrease. There is no reaction at all. That will be constant at that. Why? Because दोस्तों, you increase enzyme concentration. 1, 2, 3. You increasing active site. भाई substrate भी तो हो जुड़ने के लिए। यदि सबस्ट्रेट ही नहीं होगा तो रिएक्शन कहां से होगी, वेलोसिटी कहां से बढ़ेगी, है ना? सो व्हाट आई कैन राइट और व्हाट आई कैन प्रेडिक्ट, आई कैन प्रेडिक्ट और आई कैन राइट कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एंजाइम कॉन्सेंट्रेशन। चलेगा? चलेगा? अरे चलेगा? Sir, but up to a limit. हाँ, लिखा ना भैया, वो तो बिल्कुल नहीं छोड़ सकते अपन, अप टू अ लिमिट तो लिखना ही पड़ेगा, है ना? सर हाँ बोलिए बोलिए। सर वो अगर हमने टेम्परेचर का ग्राफ देखा तो वो वापस नीचे भी जा रहा है, तो फिर हम बोल सकते हैं कि लिमिट रीच करने के बाद वो 10 डिग्री, अगर हम मतलब अगर हम 10 डिग्री राइज करते तो फिर वो डबल की जगह हाफ होगा। नहीं, डबल की जगह हाफ नहीं कह सकते, डबल की जगह हाफ नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि देयर इज अ पॉसिबिलिटी हो कि वंस यू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 40 डिग्री और 37 to 47, if you increase 10 degree more, may be possible कि at the 47 degree all the enzymes is completely denatured, there is no reaction at all. Oh Yes sir. okay, up to a limit or at Vmax no more reaction
because all substrate molecule is consumed. Perfect? Perfect? Yes, sir. Okay. One more I should take now. And this is what? This is what? Fourth factor is concentration of substrate by again plotting a graph. Now, but मेरा पेन रुक गया चलते चलते. This is x, this is y. I'm taking velocity over y. I'm taking substrate concentration on x. Okay, and now what I expect, like this. Anyone can interpret? Anyone can interpret? Anyone can interpret? सर अरे बोलिए भाई, ग्राफ को पढ़ते आना चाहिए बच्चों. कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सबसे बड़ा फैक्टर है ग्राफ. See, as we increase the concentration of substrate, velocity increases. Substrate increases, velocity increases. Substrate increases, velocity increases. तो सेम तो इसमें था. Then what should be the difference? सर पहले वाले वो linearly increase कर रहा है, linear increase कर रहा है. और इस केस में इसमें वो kind of accelerate step कर रहा है. yes, that means what we should interpret. With a small amount of increase in substrate concentration, velocity rapidly increases. Here, in a proportionate way, you increase the unit of enzyme, velocity you increase by that unit. You increase enzyme, that proportion velocity increases. But here, if you increase a very small amount of substrate, rapidly velocity increases. You increase substrate, velocity increases. और यहां तक पहुंचते पहुंचते तो दोस्तों मैक्सिमम हो गई है ना. इस कॉन्सेंट्रेशन पे तो सबस्ट्रेट मैक्सिमम तक पहुंचा दिया वेलोसिटी. यानी थोड़ा ही आप बढ़े वेलोसिटी सबस्ट्रेट पर तो एकदम से यहां पहुंच गया. थोड़ा ही आप बढ़े तो आप एकदम से यहां पहुंच गया. Like this. So what is the difference in reading or interpreting these two graphs? Here, enzyme concentration, increasing enzyme concentration and increasing velocity was proportionate. But in here, in this case or in this graph, small amount of increase in substrate concentration, velocity increases rapidly. Perfect? और इसमें तो ये भी बताया गया कि while you will increase a concentration of substrate, there will be an amount which will be fixed for a particular enzyme, which will be थोड़ा बड़ा लिखता हूं, which will be fixed for a particular enzyme. This is known as Km, known as Michaelis maintain constant. Michaelis maintain constant. Michaelis और maintain साहब ने क्या बताया कि while you increase the substrate concentration, definitely velocity increases rapidly. So while increasing substrate concentration, there will be a concentration of substrate. There will be a concentration of substrate on which the rate of reaction will be half of V maximum. बड़ा लिखूं. While increasing the substrate concentration, there will be a concentration of substrate occurs where you find the velocity is half of its maximal velocity. Simple, eh? You increase substrate concentration, velocity increases. You increase substrate, velocity increases. There is a point, there is a concentration of substrate at which the rate of reaction will be half of its maximal velocity. Agree or not?
Yes, sir. Yes, sir. So this concentration was observed by Michaelis and Mentane. Scientist के नाम Michaelis and Mentane. So called as what? Km constant or Michaelis-Mentane constant. For this, they proposed a numerical expression also. The instant velocity at any time v equals to v max s upon km plus s equals to v max s upon km plus s. This equation is known as Michaelis-Mentane equation or MM equation. V equals to v. डेरिवेशन का अपने को जरूरत नहीं क्योंकि मैं ये रिसर्च पर्पस से आपको बता रहा हूँ, इतना तो नीट में डेप्थ में जाएंगे नहीं. हाँ, फॉर्मूला जरूर, एक्सप्रेशन जरूर पूछा जाएगा. यस आई गॉट इट. व्हाट वी कैन डू यहीं पर इजी बनाता हूँ थोड़ा सा. व्हाट वी कैन डू दोस्तों, यदि km concentration, if I am saying कि km concentration is a substrate concentration, है ना, km concentration is a substrate concentration that I am telling to you. So if I put the value of km as s, see what happens. V equals to V max s upon s plus s. मैं ये जानना चाहता हूं कि km concentration क्या चीज है, मैं जानना चाहता हूं. So I put the value as s. This is substrate concentration. But what concentration it is? What concentration it is? It is like V max s upon 2s. S cancelled by s. So V equals to 1 by 2 V max. I got my point. दोस्तों आया मजा? मनोली मैडम. सर. Yes, sir. हाँ बोलिए. सर वो तो कांस्टेंट है तो उसकी वैल्यू तो फिक्स रहनी चाहिए ना, तो हम तो चेंज कर रहे हैं. कहाँ चेंज कर रहे हैं? हमने कहाँ चेंज किया? सर तो फिर हम डायरेक्टली एस लिख सकते हैं ना, केएम लिखने की क्या जरूरत है? नहीं, हम केएम, भाई मैं तो जानना चाह रहा हूँ कि केएम क्या है. मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ हर एंजाइम का केएम अपना फिक्स होगा वो, राइट. मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, सपोज आई एम एन एंजाइम, मेरा केएम क्या है ये कैसे पता लगेगा? भाई मेरा केएम और आप एक एंजाइम, आपका केएम, two enzymes will different km. Om, agree? Yes, sir. So what is that concentration? I know this is substrate concentration, but what is that? So वो मैंने आपको बताया, reverse calculate करके I put the value of km as s. What concentration it is of substrate? So what I found, it is that concentration at which, concentration मुझे नहीं पता, but that is that concentration at which the rate of reaction will be half of its maximal velocity. Agree? Yes. So Km can be defined as what? Km is that concentration of substrate at which the rate of reaction will be half of its maximal velocity. Perfect. स्मिरा मैडम आया मजा? Yes, yes, sir. लोग बायोलॉजी को बड़ा इजी समझते हैं यार, है ना. उनको लगता है कि बायोलॉजी में लर्न कर लेना है, रट लेना है बस, है ना. ओम भाई मजा आया कि नहीं आया? आया सर. समझ में आया होगा तो मजा आएगा बच्चों, समझ में नहीं आया होगा तो मजा नहीं आएगा. मुग्धा, डॉक्टर मुग्धा बाविस्कर, समझ में आया बेटा? Yes, sir. मंदार, मानस, जयवर्धन, ईशानी, चैतन्य, Yes, sir. डॉक्टर Yes, sir. व्यवहारे, प्रणव पवार. Yes, sir. मैं इजी बनाने की कोशिश करता हूँ बच्चों बायो को, आप फिर भी अच्छा नीचे भी थे, मैं देख ही नहीं पाया लिस्ट. प्राप्ति, प्रसाद, प्रथमेश अभाले, समझ में आया बेटा? Yes, sir. प्रथमेश महाजन, शौनक, श्रेया, सिद्धेश. अरे सिद्धेश भाई आप रह गए. सिद्धेश धात्रक, गॉट इट? Yes, sir. Yes, sir. पक्का? हाँ सर.
देखिए बच्चों, कोई डाउट हो तो मुझे बोलिए, अदरवाइज वी क्लोज द सेशन because one more class I have right from 7. Please ask me any doubt. Otherwise, अच्छा मैं लेक्चर भी शेयर नहीं किया आपसे यार. Shit, I forgot. Okay. Any more doubts, doctors? मैं डॉक्टर से बोलूंगा, मुझे आदत है डॉक्टर्स बोलने की ना. उसमें कुछ इंजीनियर्स बैठे हैं तो डोंट टेक इट अदरवाइज. Be a engineer, no issue. But till my class, you should be doctor for me. At least for class 10. After 11, you will be segregated from me, na? Okay. Any doubt to anyone? No, sir. For sure. Yes, sir. Okay. So now I'm going to close the session. Stay tuned with your studies. Today, since I almost finished the enzymes, only one factor remained, जो नहीं रहना चाहिए था, but I have my class. So inhibitor मैं अब आपको next class में बता पाऊंगा, and we'll start with protein. Inhibitor के साथ protein हम लोग start करेंगे, right? All the best. Going to close the session. Thank you, sir. Thank you, sir.